اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یونس آیت نمبر 31، 32، 33 تین آیت ہے، اور یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 4، چوتھا رکوع۔ تو اب آیت نمبر 31، قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ تو آیت نمبر 31 جو ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہو، قل، یعنی اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ان سے، من یرزقکم من السماء، کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے آسمان سے۔ کہ اللہ نے یہاں پر بتایا کہ تم کو رزق جو عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ آسمان سے آتا ہے۔ تو یہ قرآن بھی تو آسمان سے ہی آیا ہے، تو یعنی تم کو رزق تو اچھا لگتا ہے نا آسمان سے جو آیا، وہ تو کیونکہ وہ رزق آسمان سے کیسے آیا؟ بارش برسی تبھی تو سبزہ ہوگا، تو رزق تو آسمان سے ہی آیا نا۔ تو ایسے ہی جب قرآن کی بارش برستی ہے دل کی زمین پر تو وہ آسمان سے ہی تو آیا قرآن۔ تو کوئی دل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، جن دلوں کے اندر سوکھا اور کال پڑا ہوا ہے، جو ڈراٹ ہٹ ہے جن کے دل، وہاں پر کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر مطلب نہ کچھ اگتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اب اللہ پہلے سوال پوچھ رہا ہے، کہو ان سے من یرزقکم من السماء والارض، تو وہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان سے اور زمین سے، کیونکہ زمین جب پھٹتی ہے نا، وہ پھٹتی ہے اور اس میں سے وہ جو نکلتی ہے مطلب کوپل، تو وہ زمین کو پھاڑ کے کوپل کو نکالنے والا کون؟ کوئی تھوڑی وہاں پر لے کے بیٹھا تھا کہ بھئی ہتھوڑی اور اسکرو ڈرائیور اور سب لے کے بیٹھا تھا کہ چلو سب جگہ بیج ڈالے، اب سب جگہ تھوڑا تھوڑا کھڈا بھی کر دیتے۔ تو یہ سب تو کوئی بندہ تو نہیں کر سکتا، یہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اللہ ہے جو آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے اور زمین سے تمہیں وہ رزق ملتا ہے۔ ام من یملک السمع والابصار، تو اب دوسرا سوال پوچھ رہے اللہ کہ یعنی کون ہے؟ ام من یملکو، کس کا پاور ہے؟ کون ہے وہ جس کا پاور ہے؟ سوچو، السمع والابصار، یعنی سننے پر اور دیکھنے پر۔ تو تمہارا جو کان ہے جس سے تم سنتے ہو، تمہاری ہیئرنگ، اور تمہاری سائٹ یعنی تمہاری نگاہ، تمہارا ابصار، تمہارا دیکھنا، تو کون ہے جو اس پر پاور رکھتا ہے؟ تمہارا سننا اور تمہارا دیکھنا، یعنی کہ سب سے آرڈینری، سب سے سمپل اللہ نے جو ہمارے دو فیکلٹیز ہے اس کو بولا، باقی تو اور بڑی بڑی فیکلٹیز تو اندر بہت ساری ہے نا، کہ بندہ جو ہے اس کا دل دھڑکنا، اس کی ہارٹ کو پمپ کرنا بلڈ کو، پھر وہ برین تک جانا، پھر پورے وینز جو بلڈ کو لے جاتی ہے، جو خراب بلڈ جو ہوتا ہے اس کے الگ ہوتی ہے، اور پھر دنیا بھر کے ہاتھ، انگلیاں، جوائنٹس، اتنے سارے باڈی کے بہت کچھ ہے کہ بندہ کھائے پیے اور سوچو کہ اس کو وہ اپنے حاجت ہی پوری کرنے کو نہ ملے کہیں واش روم، تو تبھی بھی اس کی حالت بری ہوگی۔ تو یہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو کہ ہمارے جسم میں بھی اور باہر بھی، پورے آفاق میں بھی بہت ساری باتیں، لیکن اللہ نے دو بہت ہی آرڈینری چیز کے بارے میں کہا کہ کون ہے جس کا پاور ہے سننے پہ اور دیکھنے پہ۔ اب سوچو وہ سننا اور دیکھنا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے۔ تو نہیں بندہ سن سکتا ہے، دیکھو بہرا ہو جاتا ہے، نہیں دیکھ سکتا، اندھا ہو جاتا ہے، تو کتنی بڑی ہے وہ چیز۔ تو اللہ وہاں پر پوچھ رہا ہے کس کا پاور ہے اس پر، وہ ایک جھٹکے میں لے سکتا ہے نا،
यानी इंसान की आंखें ले सकता है, इंसान की बसारत ले सकता है, इंसान की कानों को बहरा कर सकता है। तो अल्लाह पूछ रहा है लेकिन है कौन जिसका पावर हो? आई अमलिकू, कौन है वो? वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और कौन है वो जो निकालता है जिंदा में से मुर्दा को, जिंदा में से मुर्दा को निकालता है। वह युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और जो मुर्दा को निकालता है जिंदा में से। तो जिंदा को मुर्दा में से निकालता है, मुर्दा को जिंदा में से निकालता है, कौन है वो? पूछ रहा है, अल्लाह खुद बोल रहा है, पूछो इनसे कौन है वो। और फिर आगे पूछ रहा है अल्लाह, वमन युदब्बिरुल अम्र, कौन है जो सारे मामलात जो है वो सब कुछ को वो देखता है, वो कौन है जिसके तमाम, यानी जैसे कि जो हर चीज का मतलब पावर रखता है, और जो तमाम सब जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो तमाम के तमाम वो है जो सेट करता है हर मामलात में। तो कौन है वो? अल्लाह पूछ रहा है। मैंने बंदों से पूछो, जाओ ये जो शिर्क कर रहे हैं मुशरिकीन, ये बुत परस्त, इनसे पूछो। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं तो वो जवाब देते हैं। यहाँ अल्लाह ने वो जवाब भी रिकॉर्ड कर दिया, फसयक़ूलूना, और वो कहेंगे, तो फिर वो जवाब देंगे फसयक़ूलूना अल्लाह, अल्लाह, यानी वो लोग जवाब देते हैं ये सब कुछ करने वाला तो अल्लाह है। क्योंकि टॉप पे तो वो लोग भी बोलते थे कि अल्लाह है, टॉप पे तो अल्लाह को ही रखे थे, नीचे दूसरे सब माबूदों को रखा था। ऐसे ही दूसरे और भी जहां पर भी देवी देवता सब है तो उन लोगों को सब नीचे तो रख लिया तुमने, लेकिन उनके ऊपर एक बोलते नहीं, वो एक है परम आत्मा, यानी परमात्मा। तो परमात्मा कौन है? वही है जो अल्लाह है, जो अलमाइटी है। तो अब यहां पर वो लोग कहेंगे अल्लाह, फकुल, तो अल्लाह कहता है कहो फिर इनसे, अफला तत्तकून, तो क्या फिर भी तुम मतलब अल्लाह का तकवा इख्तियार नहीं करोगे, यानी कि तुम अल्लाह से फिर भी नहीं डरोगे? यानी इतने निडर और बेबाक हो गए हो तुम कि इतना सब जवाब दे के भी तुम अल्लाह से नहीं डरते? तकवा नहीं है अल्लाह का, कोई फियर नहीं है। ये अल्लाह का बोलने का अंदाज और साथ ही लथाड़ने का अंदाज है। Say, who is it that sustains you in life from the sky and from the earth? Or who is it that has power over hearing and sight? And who is it that brings out the living from the dead and the dead from the living? कितने क्वेश्चन है देख लो, दो इसका जवाब। And who is it that rules and regulates all affairs? They will soon say, Allah. Say, कहो इनसे फिर, ये वही है, से अल्लाह का हुक्म है यहाँ पे, कहो, विल यू नॉट देन शो पाइटी टू हिम, उसके बावजूद भी तुम उसका तकवा नहीं इख्तियार करोगे। इसकी नोट्स है 1422, 1423 और फिर लास्ट है यहाँ पर 1425। तो 1422, sustenance may be understood in the sense of all the provision necessary for maintaining physical life as well as mental and spiritual development and well-being. सोच लो, इन तमाम के लिए रिस्क का जरूरी है। ये रिस्क जो अल्लाह हमको पहुंचाता है उससे हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारा जिस्म, हमारी ये जिंदगी, रूहानी भी, सबकी तरक्की, सब कुछ इसी के ऊपर है कि जो हमको अल्लाह रिस्क अता करता है, ताकि हमारी जो जिंदगी, हमारी ये लाइफ, हमारा जिस्म, फिर उसके अंदर की तमाम चीजें मेंटल और स्पिरिचुअल, वो सबके लिए, उसकी सबकी तरक्की के लिए ये और सबके अच्छा होने के लिए अल्लाह का ये रिस्क जरूरी है। और अल्लाह ने हर तरह का रिस्क अता किया है। एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्रेन ही वर्क नहीं करता, सोच लो। तो फिर अल्लाह ने तो हर चीज पे बराबर जो रिस्क पहुंचाने का काम है, तो वो सिर्फ वही नहीं है कि सिर्फ जमीन फटी और उसमें से आसमान से पानी गिरा, जमीन फटी और उसमें से सब्जा निकला, सिर्फ वही नहीं है, और भी तमाम चीजें हैं। सूरज, हवा, सब कुछ है, बादल, बारिश और बहुत सारी चीजें। एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉर्मर आर लाइट एंड रेन फ्रॉम हेवन, यानी कि इससे पहले जो एग्जाम्पल अल्लाह ने दिया था वहां नूर, उजाला, रोशनी,
और बारिश जो आसमान से आती है, एंड द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ, और जमीन में से जो सब्जा उगता है, तमाम अनाज, फल, मेवे, फूल, जड़ी बूटियां, सब कुछ आ गई. एंड फैसिलिटीज ऑफ मूवमेंट ऑन लैंड एंड सी एंड इन एयर. इन एयर का मतलब नेचुरली अब तो सब प्लेन है, सब है, तो वो भी तो है ना, ट्रैवलिंग तो खाली लैंड और सी नहीं है, बाय एयर भी है. तो ये तमाम चीज को किसने फैसिलिटेट किया? अल्लाह ने. जमीन पे तुम चलते हो, वो भी चाहे पहले ऊंट थे, फिर अब मोटर गाड़ियां भी है, और फिर उसके बाद समंदर के अंदर है, जहाज है, सब है बहुत. और फिर तीसरा है जो हवाई जहाज, यानी कि मतलब प्लेन के सफर, सब चीज के अंदर मूवमेंट अल्लाह ने उसको, वो भी तुम्हारे लिए किया. एग्जाम्पल्स ऑफ द लेटर आर द मॉरल एंड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस दैट कम फ्रॉम आवर फेलो मैन. तो हमारे जो भी साथ के लोग होते हैं, तो उनके थ्रू भी हमको अखलाकी, रूहानी, उनसे भी हमको मिलता है. जैसे हम रहते, एक माशरे में रहते, एक घर में रहते, एक खानदान में रहते, वहां से भी हमको सब मिलता है ना, हमारे फेलो मैन के थ्रू. तो जो तुम्हारे साथीदार है, जो तुम्हारे रिश्तेदार है, जो तुम्हारे साथ के लोग हैं, उन तमाम से, एंड फ्रॉम द ग्रेट टीचर्स एंड प्रॉफिट्स, और जो भी बड़े बड़े जो मुअल्लिम्स, टीचर जो हैं, और रसूल और नबी, उनके थ्रू भी. फिर है 1423 नोट. जस्ट 2 of our ordinary faculties, hearing and sight, are mentioned as examples of the rest. यानी बाकी का जो हमारा जिस्म के अंदर या और भी जो भी चीजें हैं, अल्लाह ने जो दिया हुआ, अल्लाह की नेमतें, और जो हमको फैकल्टीज अल्लाह ने दिया है, उसमें सबसे ऑर्डिनरी, जो सबसे ऑर्डिनरी जिसको गिना जाएगा, वो है हियरिंग और साइट, यानी कि सुनना और देखना. तो उसका यहां पर अल्लाह ने मिसाल दिया. ऑल द गिफ्ट्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के तमाम जो भी गिफ्ट है अल्लाह ने जो दिया है, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, चाहे जिस्मानी तौर पे और चाहे वो इस दुनिया के, और फिर रूहानी, are enjoyed and incorporated by us by means of the faculties and capacities with which he has endowed. He has endowed us. तो ये जो भी हमको अल्लाह पाक ने दिया है, तो हम चाहे फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, रूहानी, वो तमाम चीजों को हम बहुत इंजॉय करते हैं. और ये सब मिलजुल के, ये तमाम जो फैकल्टीज हमको दिया अल्लाह ने, वो तमाम मिलकर यकजा होकर हमारे लिए सब काम करते हैं. और फिर अल्लाह ने हमको जो भी हमारे अंदर काबिलियत, कैपेसिटीज जो दिया है, जो अल्लाह ने हमको ये फैकल्टीज के थ्रू, तो ये तमाम चीजें जो है वो इनके थ्रू आती है, और वो अल्लाह है ना देने वाला. फिर है आयत नंबर 32. फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ फमाज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल फ़अन्ना तुसरफून. तो फिर अल्लाह अपने पढ़ने वालों से पूछ रहा है, फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वो है अल्लाह तुम्हारा रब, जो अल हक है, द ट्रूथ है, यानी सच्चा रब. तो वो है तुम्हारा, अल्लाह है तुम्हारा रब. फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ फमाज़ा बादल हक़ के इल्ला ज़लाल. तो अब इस हक के बाद, यानी तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा रब है और वो हक है, तो इस हक के बाद जब तुम्हें पता चल गया ये हक है, अब उसके बाद क्या है? फमाज़ा बादल हक के इल्ला ज़लाल, सिवाय गुमराही के, यानी कि सिवाय तुम्हारे भटकने के, अब इसके बाद और कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो है अल्लाह टॉप पर. अब तुम बोल रहे हो कि नहीं उससे आगे जा रहे हो, तो अब उससे आगे सिवाय भटकने के और कुछ नहीं है. जलाल है, जलाल, इल्ला जलाल. फ़अन्ना तुसरफून, तो तुम कहाँ पलटाए जा रहे हो? यानी तुमको मालूम पड़ गया ये रब है, ये हक है, ये सच है, और उसके बाद तुम पलट के कहीं और जा रहे हो, किसी और को अपना रब बना रहे हो, तो क्या मतलब? तो कहाँ भटक के जा रहे हो? टर्न होके पलट के कहाँ जा रहे हो? सच इज अल्लाह योर ट्रू लॉर्ड. अपार्ट फ्रॉम द ट्रूथ व्हाट रिमेन्स बट एरर. हाउ देन आर यू टर्न्ड अवे? इसकी नोट है 1426.
This is the general summing up of the argument. Sorry, ये 1425, अच्छा इससे पहले की आयत की ये थी, तो ये एक नोट यहाँ पर मेरे से रह गई. This is the general summing up of the argument. जो बहस हो रही है उसका मतलब ये फाइनल है. जनरल जो बोलते हैं, जैसे द गवर्नमेंट ऑफ द होल क्रिएशन एंड इट्स मेंटेनेंस एंड सस्टेनेंस इज इन द हैंड ऑफ अल्लाह. तमाम कायनात, तमाम मखलूकात, उन सब की देखभाल, उनकी मेंटेनिंग, उनका रिस्क, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है. हाउ फ्यूटाइल देन वुड इट बी टू निग्लेक्ट हिज ट्रू वर्शिप and go after false gods. तो कितना फजूल, कितना मतलब झूठा, बेकार होगा कि तुम जो है हकीकी जो तुम्हारा रब है सच्चा, उसकी बंदगी छोड़कर झूठे माबूदों के पीछे जा रहे हो. फिर 1426 जो है अभी जो आयत पढ़ी उसकी नोट है. द वंडरफुल हैंडीवर्क एंड विजडम ऑफ अल्लाह हैविंग बीन रिफर्ड टू एज द रियल ट्रुथ as against the false worship and false gods that men set up, it follows that to disregard the truth must lead us into woeful wrong, not only in our beliefs but in our conduct. तो वंडरफुल अल्लाह का यानी जो ये कारीगरी जो अल्लाह की है, हैंडीवर्क, ये कमाल की है एकदम, और उसके अंदर अल्लाह की हिकमत. तो वो हिकमत के बाद तो अल्लाह यानी हर चीज को सही, उसका हकीमाना अंदाज जो है वो उसी से करता है ना, वो ऐसे ही अलल टप कुछ भी नहीं करता. तो फिर वो है जो रियल यानी हक है, वो अल्लाह, वो हमारा रब, वो हक है. तो एज अगेंस्ट द फॉल्स वर्शिप, तो जैसे कि झूठी जो बंदगी है उसके अगेंस्ट सच्ची वर्शिप अल्लाह की है. एंड फॉल्स गॉड्स दैट मेन सेट अप, और इंसानों ने जो भी माबूदों को बना लिया है, जो झूठे खुदाओं को बना लिया है, और वो चीज जो है वो फॉलो करती है, यानी कि मतलब जो हक है, जो सच है, यानी उसको तुम बिल्कुल उसकी वो कर दो, डिसरिगार्ड कर दो, यानी उसको तुम मानो भी मत, गिनो भी मत. और ये कि अगर तुमने ये बंदगी की तो फिर तुम तो बहुत ही मतलब गलत सिन और उसके ऊपर जाओगे और तुम भटक जाओगे, वो तुमको गलत जगह पे लेके जाएगी. और ये कि तुम्हारा जो बिलीफ है, जो तुम्हारे अंदर, नॉट ओनली इन अवर बिलीफ, यानी तुम्हारा ईमान भी खराब हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अखलाक भी खराब होंगे साथ में. क्योंकि अखलाक कैसे अच्छे हो सकते हैं अगर अल्लाह का कहना नहीं माना जा रहा है? तो बुतों का माना जा रहा है, बुतों का, यानी बुतों का बोल बोल के वो सारे पंडित या जो भी है, पुरोहित और मतलब जो भी प्रीस्ट, उन सब का माना जा रहा है ना कहना. तो अब अल्लाह का कहना कहाँ रहा? अल्लाह का कहना मानेंगे तो अच्छे अखलाक होंगे. वी शैल अर्र एंड स्ट्रे टू बी लॉस्ट. फिर हम जो गलतियां करेंगे, गुमराही करेंगे और गुम हो जाएंगे. यानी कि मतलब तुम भटक गए, अब तुम गुम हो गए. अब आखिरत में तुम्हारी रूह जो है वो भी लॉस्ट हो गई, क्योंकि उसको अब जहन्नुम में जाना है, अजाबों में और जलना है. हाउ देन कैन वी टर्न अवे फ्रॉम द ट्रूथ. तो जब इतनी सारी बातें सामने आई तो अब तुम हक बात से, हक बंदगी से, अल्लाह की जो हक है उसको कैसे तुम उससे पलट रहे हो? अब है आयत नंबर 33. कज़ालिका हक्कत कलिमतु रब्बिका अलल लज़ीना फसक़ू अन्नहुम ला युमिनून. कज़ालिका हक्कत कलिमतु रब्बिका. तो अल्लाह का, तुम्हारा रब जो है, मतलब रब्बिका, वो रब जो तुम्हारा है, उसका जो भी कलिमा है वो अब साबित हो गया, वो हक है. अलल लज़ीना फसक़ू, उन लोगों के खिलाफ जो फासिक है. फसकू, जो फासिक है, रिबेलियस, गलत काम करने वाले, तो वो उनके लिए बोला जा रहा है कि देखो, तो ये अब कलमा जो है तुम्हारे रब का, वो अब सच्चा साबित हो गया उन फासिकों के खिलाफ. अन्नहुम ला युमिनून, कि यकीनन वो लोग नहीं ईमान लाएंगे. Thus is the word of thy Lord proved true against those who rebel. Verily they will not believe.
इसकी नोट है 1427. Disobedience to Allah brings its own terrible consequences on ourselves. जब भी हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो ये सोचना बहुत गलत है कि नाफरमानी भी की और कोई सजा भी नहीं आई, कोई बुरा अंजाम भी नहीं हुआ, भयानक अंजाम भी नहीं हुआ. ये बहुत गलत सोच है. इसलिए कि जब भी अल्लाह की नाफरमानी होगी तो फिर उसके बाद वो जो उसका भयानक अंजाम जो आएगा वो उसकी वजह से ही आएगा, क्योंकि तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, इसकी वजह से ही आएगा. और यही वजह है कि उसका जो भयानक अंजाम जो है वो हम ही लोगों पर आता है फिर, क्योंकि अगर हमने नाफरमानी की तो हम ही लोगों पर आता है. वो खुद ही, यानी तुमने किया ना एक काम गलत, अब उसका अंजाम अपने आप आएगा ही. द लॉ, अल्लाह की शरीयत, द वर्ड, अल्लाह का ये कलाम, द डिक्री, अल्लाह का फैसला, ऑफ अल्लाह मस्ट बी फुलफिल्ड. तो जो भी अल्लाह का, तमाम अल्लाह ने जो कायदे कानून बनाए हैं, शरीयत का लॉ मालूम है सबको, फिर अल्लाह का जो कलाम है, जो कुरान के अंदर जो बात बोली गई है वो, फिर अल्लाह का जो फैसला है, ये सबको पूरा होके रहना ही है. ऐसे ही झूठ मूठ नहीं है कोई भी बात. इफ वी गो टू फॉल्स गॉड्स, अगर हम झूठे माबूदों की तरफ जाते हैं, आवर फेथ विल बी डिम्ड, हमारा ईमान जो है वो मध्यम पड़ जाएगा, एंड देन एक्सटिंग्विश्ड. तो जब लाइट धीमी पड़ती है, मध्यम हो जाती है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, बुझ जाती है. ईमान की वो रोशनी भी ऐसे ही बुझ जाती है, फिर खत्म. अब ईमान है कहाँ? आवर स्पिरिचुअल फैकल्टीज विल बी डेड. तो तुम्हारे जो जिस्म के अंदर जो फैकल्टीज है ना, उसकी बात नहीं हो रही है, रूहानी फैकल्टीज की बात हो रही है कि तुम्हारे रूहानी अज़ा जो है वो सब मुर्दा हो जाएंगे, डेड.